Assalamu alaikum friend, this is Sajid Mughal from Learner's Purpose. Today I have come up with a very important tutorial named Payroll Management System and Excel, which is more important for every business, whether it's a small business or a large scale business. Okay, let's watch the overview of what we have to do in this tutorial. Here is a dashboard, HR management system and Excel. Okay, first is the employee data. When you will click on the employee data, here it will open a sheet named employee data. Here you will enter all the information which is required about employee and basic information. You can also add or delete the information over here, whether it's left or active employee. You will update from here. Here you can see this is employee data, and second one is our attendance sheet. When you will click on attendance sheet, here it will open a sheet named attendance sheet. Here you will just add the ID of an employee. That will automatically update the employee information, and here you can write her attendance, and you can also change the year from here, like 2018, 2020, and you can also update the month like this. Okay, the heading will be automatically updated, and here you will get the attendance, net attendance about the employee, like holidays, leave, absent, net attendance, etc. Okay, next is the loan sheet. This is the loan tracker about an employee, like staff loan. You have allowed some kind of loan to employee which is deducted in installment basis, like from monthly salary. You will write over here the monthly deductions which will be deducted from payroll, and other deduction will be written over here. And here is the opening balance, payment, salary deduction, other deduction, and closing balance. This will automatically updated from the salary sheet. Okay, next is the advanced salary. This is the advanced salary which you will pay to the employee during the month or period, and date is completely deducted from the salary sheet. Here is our allowances sheet. You can add or list the allowances for each employee over here, and these allowances will be also added in the salary sheet. And here is the salary sheet which will be prepared on the basis of attendance, salary, advances, basic salary, gross, and it will retrieve all the information from all over the sheets and will calculate a salary sheet for you. Here you can see the complete salary, gross salary, GPF, deductions, loan, advances, advanced salary, and total deductions and net payment. Okay, next is the pay slip. Here we will create a pay slip. You will change the ID of an employee like this. This will automatically calculate the pay slip for that employee. You can also copy this one and like this you will get all the pay slip for each of the employee, and net payment, total deduction, received, approved. You can also add the other information over here. And next is the employee ID card. Here you will generate the employee ID card for every employee like this. You will write the you will have to write the ID over here. It will retrieve all the information about the employee and will create a employee ID card. These all the information and more advanced Excel functions we will learn in this tutorial. Okay, you can see over here current employees data. Our current employees is 15 or 15s. Staff loan, gross salary for November, and salary payable, and many other information you will get in this tutorial. I will deliver this tutorial in Urdu and Hindi languages.
if you don't know about Urdu and Hindi languages, you can just follow the practical. You can also create this application. So let's start working on it from scratch. Okay दोस्तों, तो इस पर हम चलें काम अपना करते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो हमारा सिस्टम पूरा हम बना रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अपना HR मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये अगर हम पूरा काम करेंगे शुरू से तो भी इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेसिक्स जो टेबल्स वगैरह हैं वो मैंने बना ली हैं इसमें। ठीक है, तो आप उनमें बना सकते हैं, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि हम ये बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर भी चुके हैं अपने इसमें अपने ट्यूटोरियल में पहले। तो हम यहाँ पे जो है ना सिर्फ एडवांस चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यानी कि आपके फ़ायदे की होंगी, और कम से कम टाइम पे हम इस पर पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे पास ये देखें डैशबोर्ड है। तो इसमें हम मुख्तलिफ हमने बटन वगैरह जैसे बनाए हुए हैं ना। तो फर्स्ट वाला जैसे हमारा ये बटन है, तो इस पर आप मैंने डबल क्लिक किया जैसे, तो यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग आप जैसे चेंज कर सकते हैं। इसको आप शेप भी इसका चेंज कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। ये सिंपल सिर्फ शेप है। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट किए हुए हैं, और इसके ऊपर मैंने हाइपर लिंक लगाया हुआ है जैसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हाइपर लिंक आपके सामने लगाता हूँ, जिसकी मदद से हम इसको मैं हाइपर लिंक मैंने लगाया, और यहाँ मैंने इसको असाइन किया कि मुझे जो है यहाँ पे एम्प्लॉय, जब मैं इसमें क्लिक करूँ तो मुझे ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड में लेकर चला जाए। ठीक है, तो आप ये देखें एम्प्लॉय, इसमें मैंने हाइपर लिंक लगा दिया। जैसे इस तरह बाकी सब में मैंने हाइपर लिंक लगा दिया ऑलरेडी। तो आप इसको पहले वाले को देखते हो, बाकी वाले पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एम्प्लॉय का बेसिक डेटा है, तो यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टू किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस फर्स्ट वाले को इसको असाइन किया हुआ है। तो यानी कंपनी का हम जो भी नाम यहाँ पे असाइन करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय डेटा, और बाकी जो मेरे पास जो करंट मैंने ऐसे बनाया हुआ है इसमें वो है आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, NIC है, और स्टेटस है। और स्टेटस में हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है। ठीक है, ये हमने कहाँ से लगाया, ये मैं आपको ये बता देता हूँ। अनहाइड करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क के नाम से मैंने ऐसे एक बनाया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्टिव है और लेफ़्ट है जैसे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से लेके आ रहे हैं। ठीक है, स्टेटस जो है, और स्टेटस हमने कैसे लगाया, आप डेटा में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और सोर्स मैंने इसका ये वाला सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमारे सामने यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है। तो ये एक्टिव है या लेफ़्ट है, तो ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इस शीट में जो है ना वो जो बेसिक डेटा है इसमें यही चीज़ थोड़ी सी अलग से थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी तमाम चीज़ें सिंपल हैं बिल्कुल। और पिक्चर जो है ये सिंपली आपने यहाँ से इंसर्ट की हुई है मैंने। आप इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पिक्चर इंसर्ट करेंगे, यहाँ से जो भी पिक्चर आपने इंसर्ट करनी है वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। ठीक है, ये इसका साइज़ जो है आप छोटा कर लें, रिसाइज़ कर लें इसको। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डेटा जो है ना आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब सिंपल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा काम है वो हम अटेंडेंस शीट को फ़िलहाल छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं लोन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एम्प्लॉइज़ को क्या करना है, हमने यहाँ पे लोन देना है। तो लोन के लिए हम सिर्फ आईडी को जो है ना बेस बनाएंगे। हम यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करेंगे, उसकी बेस पे हमारा एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, और हम उसकी पेमेंट्स वगैरह लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो भी वर्किंग होगी सारी वो आईडी बेस होगी। और ये आपने ख्याल रखना है कि आईडी जो है वो हमेशा आपने यूनिक रखनी है, किसी भी एम्प्लॉय की आईडी डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, लिस्ट। ठीक है, और सोर्स हमने क्या देनी है, यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है उसकी जो फर्स्ट कॉलम है वो हमने इसको सोर्स दे दिया। ठीक है, तो ये आप ये यहाँ पे देखें हमारे सामने लिस्ट आ गई। ठीक है, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2, जैसे हमने यहाँ पे 1 है या 2 है, कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपने क्या करना है, कॉपी करना है, और यहाँ नीचे तक इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है आप यहाँ पे जैसे भी। लोन तो सिंगल आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लोन में डुप्लीकेशन नहीं आपने करनी है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये डुप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा जी, और अब यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे नेम आ जाए। जब हम यहाँ पे आईडी लिखें तो यहाँ पे नेम आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप का हम फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी ये आईडी हो जाएगी,
और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपने रिकॉर्ड कहाँ से, टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा एम्प्लॉय डेटा है। ठीक है, ये पूरा टेबल आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लें, F4 दबा के फ्रीज़ कर दें, उसके बाद कॉमा लगाएं, और इंडेक्स वैल्यू हमारी क्या है, वो हमें क्या चीज़ इसमें से चाहिए, हमें एम्प्लॉय नेम चाहिए ना। तो फर्स्ट कॉलम हमारा किसका, आईडी क्या है, और सेकंड कॉलम हमारा नेम क्या है। तो हमें यहाँ पे 2 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 करो और वरना 0 कर दो। ठीक है, अब आप ये देखें, ये सारा जो है आपने यहाँ नीचे तक लेकर कंट्रोल D कर दें तो ये नीचे फॉर्मेटिंग हो जाए। आप देखें यहाँ पे आईडी चेंज करेंगे तो ये आईडी आगे नेम को खुद ब खुद यहाँ से उठा रहा होगा। ठीक है, देखिए तो इस तरह से आप देखें ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट करो, हमारे सामने एक फर्स्ट एम्प्लॉय हमारा सिद्दीक नाम का। ठीक है, इसका हमारा ओपनिंग बैलेंस था जैसे 50,000, इसका कुछ नहीं है फ़र्ज़ करो, इसको हमने 25,000 रुपये दिए, इसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 है, इसका 20,000 है। फर्स्ट करने यहाँ वैसे ही हम लोग अपनी तरफ से लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हमें कुछ भी नहीं करना। और पेमेंट मज़ीद हमने इसको हमने दी है 50,000 रुपये, इसको हमने दिया फर्स्ट करो 10,000 रुपये, और किसी को हमने कुछ नहीं दिया। अब सैलरी डिडक्शन जो है वो हमने नवंबर की जो हमारी सैलरी होगी करंट मंथ की, तो इसमें हमने जैसे सैलरी हमने डिडक्ट करनी है, इसकी हमने 5,000 रुपये करनी है, 2,000, 3,000, 2,000 ऐसे हमने यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, जितनी जितनी आपने डिडक्ट करनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अदर अगर कोई डिडक्शन होगी सैलरी से अलावा, अगर आपने डायरेक्ट कोई डिडक्शन किए तो आप इस कॉलम में लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमने सैलरी के लिए मुख्तस किया हुआ है। यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो हम सिर्फ सैलरी बेस पर इसका इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। क्लोजिंग बैलेंस में हम फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस में प्लस करो पेमेंट। ठीक है, और माइनस कर दो सैलरी डिडक्शन या कोई और दूसरी डिडक्शन है वो माइनस कर दो। ठीक हो गया, इसको आप यहाँ तक कंट्रोल D कर दें, और यहाँ डेट हम जैसे लिख देते हैं कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ भी आप डेट लिख दीजिएगा, जिस डेट में आप पेमेंट करेंगे या जो भी होगा उसमें आप लिख दीजिएगा। और ये हमने यहाँ पे सम करवा दिया, जैसे इज इक्वल टू सम, तो ये हमारे सामने क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,98,000। ठीक है, और अदर डिडक्शन कोई नहीं हुई है। 19,000 रुपये हमने जो डिडक्शन की है वो हमने सैलरी से की है, 60,000 पेमेंट हमने की है इस महीने, और 158 ओपनिंग था। ठीक है, 198 क्लोजिंग आ गया। तो इस तरह ये हमारी जो लोन की हमारी जो शीट है ये आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बाद में एंड में बताऊँगा। ठीक है, कि आप कैसे अगले महीने में इसको शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा लोन भी हो गया, और उसके बाद एडवांस सैलरी है। अब एडवांस सैलरी तो जैसे आप चाहेंगे ऐसे एम्प्लॉय को देते रहेंगे जब जब उसको ज़रूरत पड़ती रहेगी पूरे महीने में। और एडवांस सैलरी ये होती है कि जो भी आप देंगे वो सैलरी में से पूरी की पूरी डिडक्ट हो जाएगी। लोन तो ये है कि आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे एम्प्लॉय अपनी सैलरी से डिडक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो एडवांस सैलरी होती है ये पूरी सैलरी में से डिडक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम वही वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, तो इसके लिए हमें डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा, वही स्टेप दोबारा दोहराने हैं आपने, लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट हमारा सोर्स क्या है, वो है हमारा एम्प्लॉय डेटा की फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सही हो गया, और इसी को आप नीचे तक कंट्रोल D कर दें तो ये कॉपी हो जाएगा, जैसे 1 to 1। इसमें आप रिपीट कर सकते हैं, एक एम्प्लॉय जो है ना बार बार महीने में एडवांस सैलरी ले सकता है। ठीक है, और नेम हमने इसी तरह लुकअप करवाना है। ठीक है, वी लुकअप कर दिया हमने, लुकअप वैल्यू हमारी आईडी हो जाएगी, और टेबल एरे हमारा ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, F4 दबा के फ्रीज़ कर दें। हमें नेम चाहिए तो नेम 2 पे है, तो यहाँ उसके बाद 0 कर। तो आप ये देखें यहाँ पे ये एम्प्लॉइज़ हमारे सामने आ गए। अब अमाउंट है, हमने इसको जैसे एडवांस सैलरी दी है, ये हमने एडवांस सैलरी इस तरह से दी है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे इसका सम आ जाएगा, इज इक्वल टू सम, यहाँ से पूरा इसका सम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे कब कब इसको हमने सैलरी दी है, जैसे 6 नवंबर, 7 नवंबर। मैंने इसे इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल टाइम बचाने के लिए इसे। ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल इसकी डेट डालनी है जिस डेट्स को आपने यहाँ पे दी है। उसके अलावा आप इसमें रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है,
वो जो भी आप कॉलम ऐड करना चाहें वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह हमारी एडवांस सैलरी हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद अलाउंसेस की बारी आ गई। अब अलाउंसेस में भी यही सिस्टम है, मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दी है शुरू में, ठीक है। आपने वही उस सेम स्टेप यहाँ पे रिपीट करने हैं। यहाँ से हमने डेटा वैलिडेशन लगानी है, आईडी लिखनी है और उसके बाद एम्प्लॉई का नाम खुद ब खुद आ जाएगा। अब इसको जो है ना आपने क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, जैसे क्या क्या अलाउंसेस देने हैं, अकोमोडेशन है, मेडिकल है, कन्वेंस है, मोबाइल है, फ्यूल है, ये मैंने ऐसे जनरल लिखे हुए हैं। आप इसमें और मज़ीद अगर कोई ऐड करना चाहें या लेस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे टोटल आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू सम, जितने अलाउंसेस हमने इसको दिए वो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल डी कर लें तो नीचे तक इसको कॉपी कर लें। अच्छा, और यहाँ पे आप सम करवा सकते हैं। अब हम हमारे सामने आ रहा है कि इस महीने का हमने 16,000 रुपये अकोमोडेशन के मद में दिए, 21,000 रुपये इसके, कन्वेंस, मोबाइल, और टोटल हमने 1,01,000 रुपये का अलाउंस दिया, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज़ को। तो ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पे अलाउंस भी इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है। इन चीज़ों को तमाम को हम जो है ना लिंक करेंगे सैलरी शीट के साथ, ठीक है। अब हमारी जो है वो एडवांस सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए। अब सैलरी शीट पर जाने से पहले अब हमने अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो है अटेंडेंस शीट का, ठीक है। अटेंडेंस शीट वैसे नॉर्मली तो सिंपल होता है, लेकिन हमने जिस तरह से इसको बनाया है आपको हर महीने इसमें मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी, ठीक है। कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम फंक्शंस लगाएंगे। यहाँ हम जो है ना, जैसे फर्स्ट करो हम यहाँ पे दिन लिखना चाह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे जैसे हमारा एम्प्लॉई आ जाए तो नवंबर आ जाए, जैसे मंथ कोई सेलेक्ट करे तो यहाँ पे डे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ फंक्शन लगाते हैं इज़ इक्वल टू, यहाँ नीचे फंक्शन मैंने लिखा हुआ भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू इफ़, मैंने इसको ये कहा इफ़ हमारा नीचे जो डे का कॉलम है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो आगे चलो, ठीक है। तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें टैक्स चाहिए, ठीक है। और टैक्स में हमें क्या चाहिए, वीक डे हमें चाहिए। वीक डे के बाद हमें क्या इसमें चाहिए, डेट चाहिए। डेट का फंक्शन आपने लगाना है, ठीक है। और उसके बाद कॉलम ओपन करना है। और अब हमें इसमें क्या चाहिए, K1, ठीक है। हमारा ईयर यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि ईयर कौन सा आपका हो, ठीक है। ईयर हमारा ये है, ठीक है। हमने ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जो भी हम ईयर वहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। F4 दबा के फ्रीज़ कर दें, उसके बाद कॉमा लगाएं। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ईयर के बाद हमारे सामने क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है। तो मंथ हमारे पास मैंने यहाँ फंक्शन में लिखा हुआ है D2 जैसे, ठीक है, D2, यहाँ पे हम मंथ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हमें डे हमें कौन सा है वो यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा L4 से, ठीक है। अगर ये सारी हमारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फंक्शन आपने एज इट इज ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा कौन सा, 3 दफ़ा हम DD लिख देते हैं, ठीक है। 3 अल्फ़ाबेट हमें उसके 3 जो है ना 3 तक चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी शुरू वाली, अगर यहाँ पे ये 0 आ रहा है, अगर यहाँ पे ये दिन जो है वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करो, तो यहाँ पे ये हमने सिंपली ये वाला प्रिंट करवा दो, ठीक है। इसमें क्या एरर किया हमने, अच्छा जिसको हम इंटर करते हैं तो ये एरर देता है। एरर इसलिए दे रहा है कि हमने यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं लिखी नीचे, यहाँ पे दिन वाले में। इसको मैं कंट्रोल X की मदद से मैंने कट कर लिया। यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1 2 से लेके हम यहाँ से इसको पूरा कहाँ तक लिख देते हैं, 31 तक, 31 तक, ठीक है। एक मंथ में मैक्सिमम जो है वो कितने दिन हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने ये आ गई 31। तो अब दोबारा आप यहाँ पे कंट्रोल V करें, वही वाला फंक्शन, अच्छा इसमें क्या एरर आ रहा है, अच्छा अभी जो है अभी हमने ये वाला फंक्शन यहाँ लगाने से पहले हमने यहाँ पे भी थोड़ी सी वर्किंग करनी है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे हमने मोड कैलकुलेट करवाना है। मोड किस लिए,
मोड इसलिए कि कोई भी हमारा जो ईयर होगा यहाँ पे वो बस फ़र्ज़ करो जैसे हमारा जो फरवरी का महीना होता है वो बाज़ का तो 28 का होता है, और एक महीना जो 4 साल के बाद आता है वो 29 का होता है, ठीक है। तो उसको लीप ईयर जिसको कहते हैं, ठीक है। उसमें 29 का होगा, बाकी 28 का होगा। तो यहाँ पे हम जो है ना मोड कैलकुलेट करवाएंगे। मोड हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, सिंपली नंबर हमने देना है, ठीक है। और हमने डिवाइड किससे करना है, हमने 2 से डिवाइड कर देना है, सॉरी 4 से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 का मतलब ये है कि ये लीप ईयर नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर अगर हम चेंज करते हैं 2016 में करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स कि ये लीप ईयर है। और इस साल हमारा जो फरवरी का महीना होगा वो कितने का होगा, 29 का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने 2019 कर दिया तो रिमाइंडर यहाँ पे आना चाहिए ना, ठीक है। अब अगर मैंने 2020 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये 0 आ रहा है रिमाइंडर, सही है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि ये लीप ईयर है। यानी कोई भी मंथ हमारा जो 4 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पे लुकअप करवाएं, सही है। यानी कि जो भी हम यहाँ पे मंथ लिखें जैसे, और उसको जो है ना यहाँ पे हमें नंबर में वो कन्वर्ट करके दे दें। जैसे फरवरी है तो यहाँ पे 2 आ जाए, मार्च है 3 आ जाए, तो इस तरह से, ठीक है। इज इक्वल से मैंने कहा वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। और अरे हमारा ये आ जाएगा, और उसमें इंडेक्स वैल्यू हमारी 2 है, और 0 कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे नवंबर लिखा है, तो आपने देखें नवंबर यहाँ पे इसने 11 दे दिया कि ये हम यहाँ पे फार्मूला में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपली डेटा वैलिडेशन लगाना है, ठीक है। डेटा में आप जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो सोर्स है वो हमने ये वाली सेलेक्ट की हुई है अपनी लिस्ट। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने मई किया तो आपने यहाँ देखें ये 5 हो गया, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया, सितंबर किया तो यहाँ 9 हो गया, ठीक है। मैंने इसको नवंबर किया तो यहाँ पे जैसे 11 हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपना ये काम कर लिया। अब हम आते हैं इस तरफ, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिखा था नीचे डे लाने के लिए, तो आप यहीं से इसको कॉपी कर लें। F2 दबा के कंट्रोल C कर दिया आपने ये फार्मूला, ठीक है। और इसको आपने यहाँ कंट्रोल V करें, ये फार्मूला आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। शुरू में इज इक्वल टू लगा देंगे, तो यहाँ आप देखें क्या आ गया, इसका संडे आ गया, ठीक है। SUN आ गया। अब इसी को कॉपी करें और इसको आगे तक यहाँ तक इंटर कर दें, तो ये आप देखें इसकी बेस पे सारे दिन के नाम जो है ना अपडेट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे SUN जो जैसे संडे आ रहा है वो जो है वो रेड में आ रहा है। इसकी वजह ये है कि हमने इस पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको पूरे को आप यहाँ सेलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद होम पे आ जाएं, यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग है, और यहाँ पे आप न्यू रूल पे आप जाएं, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर यहाँ पे इक्वल टू SUN यानी अगर संडे है तो इसको फॉर्मेट दे दो, तो इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज कर देते हैं। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हम बहुत दफ़ा पढ़ भी चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ताकि आपकी आसानी के लिए रिपीट हो जाए, ठीक है। और ये इसका फ़ॉन्ट हमें रेड चाहिए, और हम इसका बैकग्राउंड जो है वो फिल करवाना चाह रहे हैं किसी और कलर से, जैसे इससे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो ग्रे कर, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखें जहाँ जहाँ संडे होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इसको कलर इसका चेंज कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अब देखिएगा, आपने इसको क्या करना है, यहाँ से मैंने चेंज किया मंथ, तो ये हमारा कैलेंडर जो है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने जून यहाँ से सेलेक्ट किया तो ये सारा ऑटो अपडेट हो रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ें हमने ये वर्किंग जो की हुई थी इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं, इसका अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डिलीट नहीं करना, आपने हाइड कर देना है, तो मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब सिंपली हम लोग उसी अपने काम पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे 2017 लिखा, अब ये देखें 2017 मैंने 2018 लिखा, तो कैलेंडर वो पूरा अपडेट हो रहा है। 2017 लिखा और मैंने यहाँ पे जैसे नवंबर लिख दिया, ठीक है। अब ये दिन हमारे पूरे सही आ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ नोट करें कि आखिर में आप देखें 31 भी दिखा रहा है, हालांकि नवंबर जो है वो 30 पे आगे क्लोज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे हम फरवरी सेलेक्ट करते हैं
तो फिर भी आप ये देखें, इसने फरवरी हालांकि 2017 में कितने का था, 28 का था, ठीक है, लेकिन इसने 29, 30, 31 आगे तक दे दिया। अब इसको यहाँ पे नहीं पता कि लीप ईयर क्या होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 28 तक तो ठीक है, लेकिन 29, 30 और 31 इन तीनों को यहाँ पे डिलीट करना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है आपने। जैसे 29 वाले के लिए मैंने ये लिख कर रखा हुआ पहले से, टाइम सेव करने के लिए आप इसको समझ भी लीजिएगा। यहाँ से मैंने Ctrl+C किया और यहाँ इसको मैंने = लगा के Ctrl+V कर देना आपने, ठीक है, 29 के लिए। और ये दूसरा जो फार्मूला है ये 30 के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे = लिखा, Ctrl+V कर दिया, ठीक है। अब इस फार्मूला को आप समझ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ हमने इसमें वर्किंग की हुई है, कैसे कैसे ये लिंक हो रहा है। आसान है, सिंपल है, तो इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स नहीं है इस तरह के, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैंने फरवरी जब सेलेक्ट किया 2017 में, तो ये लीप ईयर था, लीप ईयर नहीं था, मतलब लीप ईयर नहीं था तो मीन्स कि ये 28 का होगा। अब इसी को अगर मैं 2020 करता हूँ तो आप ये देखें 2020 में जो फरवरी होगा वो लीप ईयर होगा, ठीक है, यानी 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है ईयर, तो वो लीप ईयर हो जाएगा। और आपकी डेट जो है ना वो महीने का जो लेंथ है वो एक दिन बढ़ गई, ठीक है, 28 से 29 हो गई, ठीक है। अब ऐसे हमने 2018 जैसे सेलेक्ट किया तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए इसने 28 पे जाके क्लोज़ कर दिया, ठीक है। 2017 मैंने लिखा और यहाँ कोई भी मंथ का कैलेंडर आप जो है ना चेक कर, मैंने अगस्त लिखा, तो आप ये देखें 31 दिन पूरे लेके चले गए, ठीक है। मैंने इसमें नवंबर सेलेक्ट किया, नवंबर का महीना चूँकि 30 का होता है तो इसलिए इसने 30 पे। अब इस यहाँ पे कोई सा भी कैलेंडर किसी भी ईयर का आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये इसको क्लियर बताएगा। जैसे मैंने कहा 1991 का कैलेंडर मैंने देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं 2050 का कैलेंडर देखना चाह रहा हूँ कि नवंबर का, ठीक है। आप इसमें तमाम जो है ना कैलेंडर को आप इसमें आप मैं इसलिए आपको बता रहा था कि ये अटेंडेंस शीट जो हम बनाएंगे ये बहुत मज़े की चीज़ है, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने एम्प्लॉय के लिए हमने क्या करना है, आईडी लिखनी है। तो आईडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाना, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है। और लिस्ट का हमारा सोर्स क्या होगा, वही पुराना हमारा जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है इसका फर्स्ट कॉलम होगा, ठीक है। F4 दबा के मैंने फ्रीज़ कर दिया तो ये हमारे सामने आ गया। इसको आप नीचे तक इसको सिलेक्शन करें, Ctrl+D कर दें ताकि हमारे सामने पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाए। मैंने कहा 1 2 3 4 5 आप लिख दें, यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, इसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे 14 एम्प्लॉइज़ तक आ गए और यहाँ से हम एम्प्लॉय नेम जो है वो लुकअप करवाएंगे। लुकअप का फंक्शन मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, अब तो आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। हमने इतना यूज़ किया इसको। अच्छा, टेबल अरे जो हमारा वो है वही एम्प्लॉय डेटा है, ठीक है। और हमारा सेकंड कॉलम में हमें नाम चाहिए यहाँ पे और उसके बाद 0 प्रिंट कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, ये आखिर में आप देखें कि डेटा जो जहाँ पे नहीं मिला इसको तो वहाँ पे इसने क्या कर दिया, NA प्रिंट कर दिया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा ना। तो इसको जो है ना आप चेंज कर लें। शुरू में आप फार्मूला लगा दें, अगर एरर आता है एरर, अगर ये हमारा पूरा काम करो, अगर यहाँ पे एरर आता है तो क्या करो, तो यहाँ पे इसको ये ऐसे डैश प्रिंट करवा दो ताकि जो है ना अच्छा लगे। क्लोज कर दिया मैंने। अब आप ये देखें जहाँ पे इसको डेटा नहीं मिला वहाँ पे उसने NI लिखने की बजाय यहाँ पे आप कोई भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैंने प्रिंट करवा दी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लिख दें सबकी, जैसे फर्स्ट डेट में प्रेजेंट था ये, फ़िलहाल तो हम इसको सबको प्रेजेंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+V कर दिया मैंने, प्रेजेंट कर दिया। अब आप इसमें ये देखें कि जो PP जहाँ पे भी आ रहा है, अच्छा यहाँ पे जो संडे है इसको हम ब्लैंक करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अब फ़िलहाल हम जो है ना ये कैलेंडर जो हम अटेंडेंस शीट ये बना रहे हैं ये हम नवंबर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे संडे आ गया तो यहाँ हमने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ये एक हम अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं, एब्सेंट के लिए ठीक है भाई। और उसके बाद हमने L लिख दिया जैसे लीव के लिए, तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा,
तो ये कलर कैसे चेंज हो रहा है, ये कलर चेंज करने के लिए आपने सेलेक्ट करना है, सिंपली यहाँ तक आपने जैसे सेलेक्ट किया पूरा, ठीक है, और आप होम पे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँ, मैनेज रूल्स देखें, अब मैंने यहाँ पे रूल्स अप्लाई किए हैं। अब ये देखें जहाँ पे एस है, एल है, पी है, तो यहाँ पे जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे पी आ रहा है तो उसकी फॉर्मेटिंग ये है, इस तरह से इसको ग्रीन दे दो, ठीक है। तो आपको अगर नया कोई रूल अप्लाई करना तो उसका भी आसान तरीका है, इसको आप सिलेक्शन करें, ठीक है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएं, जहाँ पे न्यू रूल्स, मैंने कहा कि यहाँ जहाँ पे इक्वल टू, फर्ज करो जैसे एस आ रहा है, एस हमारा यानी संडे के लिए हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे एस आ रहा है तो उसको फॉर्मेटिंग दे दो कोई और, इस तरह से कर दो इसको, ठीक है। अब आप ये देखें जहाँ जहाँ पे हमारा संडे है वहाँ पे हम एस कर देते हैं, तो इस तरह देखें आप जहाँ जहाँ पे एस आ रहा होगा उसकी फॉर्मेटिंग इसने इस तरह से कर दी है, ठीक है। अच्छा, चूँकि नवंबर का 30 तक और 30 का महीना तो हमने यहाँ 30 पे ही रखा इसको, और यहाँ पे हमने संडे काउंट करवाने हैं, ठीक है। संडे काउंट कराने का आसान तरीका है, इज इक्वल टू काउंट एफ, मैंने कहा कि ये हमारी जो रेंज है, ठीक है, इसमें जितने भी एस यू एन है उसको काउंट करके मुझे दे दो, इज इक्वल टू की जगह नहीं यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है, मैंने इज इक्वल टू लगा दिया, जहाँ पे एस यू एन है तो उसको काउंट करके हमें दे दो। तो इसने सारे हमारे लिए संडे, इसने कहा कि ये जो मंथ है नवंबर का, इसमें 4 संडे आए हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई और अगर महीना चेंज करूँगा तो ये उसका हिसाब से बता देगा। अब ये देखें इसमें भी 4 संडे हैं, अगर कोई और दिसंबर हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें 5 संडे हैं, तो इसने 5 संडे दिखाए हैं, ठीक है। तो मैं वापसी नवंबर पे ही लेके आता हूँ क्योंकि ये अटेंडेंस बाकी मेरी नवंबर पे बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्या काउंट करवाना है, यहाँ पे हमने प्रेजेंट काउंट करवाना है, इज इक्वल टू काउंट एफ लगाएंगे हम, रेंज हम ये वाली पूरी देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या पी, कि जितने यहाँ पे पी हैं उनको काउंट करके हमें दे दो, ठीक है। इस तरह हम आगे जो है इसी को सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लीव को और एब्सेंट को भी यहीं ऐसे ही करेंगे। इसी फंक्शन को हमने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एल फॉर लीव और यहाँ पे ए फॉर एब्सेंट, ठीक है, और इसी को हमने नीचे तक कंट्रोल डी कर दिया। ये देखें जिसकी लीव होगा उसको ये काउंट कर देगा, ठीक है। और हमें जो टोटल हमें जो नेट अटेंडेंस होगी वो हमने क्या करनी है, एब्सेंट को निकालना है, तो हमने क्या करना है, संडे से लेकर लीव तक हमने इसको सम करवा लेना है, ठीक है। आप ये देखें इसकी नेट अटेंडेंस हमारे सामने आ जाएगी, लीव डिडक्शन, ये एब्सेंट जो है ना ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगी। जैसे 25, 4, 29 थे, 0 लीव है और 1 एब्सेंट है, तो ये 29 दिन आ जाएंगे आपके पास नेट अटेंडेंस के, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम लोग अभी अटेंडेंस शीट पे हैं, ठीक है। अटेंडेंस शीट हमारी अब यहाँ तक कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं किस पे, अब हम चलते हैं सैलरी शीट पे, ठीक है। तो सैलरी शीट में हमने क्या करना है, वही यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लगवाते हैं। ये हमने सिंपल सी फॉर्मेट जैसे बना के रखा हुआ, आपके इसमें हेडिंग्स अलग हो सकती हैं, जो भी हो सकती हैं, आप बेसिक आपने फंक्शन को अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वहीं से लुकअप इज़ इक्वल टू करके लिंक किया हुआ है, जैसे इज़ इक्वल टू, यहाँ जो भी आप नाम लिखेंगे वो यहाँ पे खुद ही खुद आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने कैनकैटिनेट का फंक्शन लगाया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कैनकैटिनेट इज़ इक्वल टू सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ तक मैंने लिखा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे हमने ये मंथ है और ये ईयर है। कैनकैटिनेट मतलब मुख्तलिफ जो टेक्स्ट होते हैं उसको, बल्कि मैं आपके सामने इस फंक्शन को लगा देता हूँ अगर आप इसमें में शायद नहीं है, इसको मैंने कंट्रोल सी का मैंने कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू कैनकैटिनेट जो हमारा टेक्स्ट 1 है, सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ, दूसरा हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, वो आएगा हमारे पास, हम अटेंडेंस शीट से लेंगे फॉर द मंथ ऑफ, ये यहाँ से नवंबर, तीसरा हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ईयर होगा, यहाँ से उठा लेगा इसको, ठीक है। अब ये देखें सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017,
हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट छोटा सा है जिसमें सिर्फ स्पेस हो, ठीक है। ये देखिए सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017 हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एम्प्लॉय का डेटा वैलिडेशन अप्लाई करें, ठीक है। और वही सिंपल फर्स्ट हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पे हमारे सामने आ गया, ठीक है। इसको आपने कंट्रोल C करना है और यहाँ तक आपने इसको कंट्रोल D की मदद से कॉपी कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4, जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी वही लिखिएगा, ये नहीं कि मुझे फॉलो करते हुए सबको आप यही लिख दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया, ओके। अब उसके बाद एम्प्लॉय नेम जो है वो यहीं से हम इसकी मदद से हम लुकअप करवाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है। और हमारा टेबल अरे जो है वो क्या है, वो ये है पूरा, F4 से फ्रीज कर दिया और 2 पे हमारा एम्प्लॉय नेम है और 0 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी को नीचे तक कंट्रोल D कर दें, F2 करके इसको कॉपी करें, मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर दिया। डिजिग्नेशन हमारी कितने पे आ रही है, कॉलम नंबर 3 पे आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 2 की जगह 3 कर देंगे और इसी को कंट्रोल C करें, कंट्रोल V करें। बेसिक सैलरी हमारी कितने पे आ रही है, बेसिक सैलरी हम जो है ना शुरू में लिखेंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर, बेसिक सैलरी 1 2 3 4 पे आ रही है। तो सैलरी शीट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 की जगह यहाँ पे हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ, इसको कंट्रोल D कर दें, नीचे तक कॉपी हो गया, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी जैसे लिखी तो इससे नाम उठाएगा वहाँ से डेटा से, और यहाँ पे भी आपने ख्याल करना है कि कोई भी डेटा डुप्लीकेट यहाँ पे ना हो, ठीक है। अब अटेंडेंस हमारी क्या है, अटेंडेंस भी हम लुकअप करवाएंगे, कहाँ से, अटेंडेंस शीट से, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी आईडी ये हो, ठीक है। टेबल अरे हमारी क्या है, वो है हमारी पूरी अटेंडेंस शीट, ठीक है। और उसके बाद हमारी इंडेक्स नंबर क्या है। अब इंडेक्स नंबर देखने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पहले एक काम कर लेते हैं, बल्कि इंडेक्स नंबर इसमें इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही है, तो लिहाजा इंडेक्स नंबर हम करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट होगा, ये 2 है, तो इसी को आप आगे तक चेक कर लें कि ये हमारी नेट अटेंडेंस जो है वो कितने पे आ रही है, वो आ रही है 38 पे, ठीक है। 38 आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कॉलम नंबर 38 हमारा उस पर अटेंडेंस आ रही है। सैलरी पे जाएं दोबारा, यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है और हमारा अटेंडेंस का जो है वो हमने पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आईडी तक, ठीक है। F4 से फ्रीज कर दिया और लोग हमारा कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर 38 है और उसके बाद 0 प्रेस कर दो, ठीक हो गया। अब आप ये देखें फर्स्ट हमारा जो एम्प्लॉय है वो सिद्दीक नाम का है और अटेंडेंस शीट में आप जाके देखें सिद्दीक नाम के बंदे की अटेंडेंस जो है वो हमारा एम्प्लॉय, उसकी अटेंडेंस क्या है, 30 डेज़ है, ठीक है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, तो ये सैलरी शीट में सबकी अटेंडेंस आ गई, ठीक है। अब हमें अलाउंसेस जो हैं वो भी हमें सिंपली लुकअप करवाने, लुकअप किसकी बेस पे, आईडी की बेस पे, और ये हमें लुकअप कहाँ से करवाने हैं, हमारे अलाउंसेस की शीट से। हमारी अलाउंसेस की शीट कहाँ है, ये हमारी अलाउंसेस की शीट है, ठीक है। और इसमें हमें ये सेलेक्ट कर लें पूरा, और उसके बाद हमारा इसमें नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे हमारे अलाउंसेस आ रहे हैं, नेट अलाउंसेस, तो ये हमने यहाँ पे लुकअप करवा लिए, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे जो नीचे जो NA आ रहा है, तो मीन्स हमने ये ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको हमने कोई अलाउंसेस नहीं दिए हुए, तो अब ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे शुरू में F एरर का। हम कहते हैं कि अगर F एरर आता है यहाँ पे हमारी ये वैल्यू उठा के लेके, अगर एरर आता है तो यहाँ पे क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। अब इसको दोबारा आप नीचे कंट्रोल D करें, तो आप ये देखें जिन के अलाउंसेस कुछ भी नहीं होंगे उनकी जगह 0 कर देगा। तो अब यहाँ से आप क्रॉस चेक भी इसको कर लीजिएगा कि 1,01,000 रुपये हमारे सामने आ रहे हैं, क्या अलाउंसेस आ रहे हैं, तो क्या हमारे अलाउंसेस यही हैं।
आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये देखें 1,01,000 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम सैलरी शीट पे वर्किंग करें तो ग्रॉस सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, हमने कहा कि इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी को डिवाइड करो 30 पे, ठीक है, और इनटू बेसिक सैलरी को डिवाइड करो 30 पे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो अटेंडेंस से और प्लस कर दो इसमें अलाउंसेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, यानी हमारी जो बेसिक सैलरी है वो अटेंडेंस की बेस पे कैलकुलेट होगी और इसमें अलाउंसेस ऐड होंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। और ये GPF है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रोविडेंट फंड, और IT इनकम टैक्स मैंने जैसे लिखा हुआ है। GPF फर्ज को हम ये कह रहे हैं कि GPF हमारा होगा हर एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी का 5% सपोज हम बोल देते हैं इसे, वो हम डिडक्शन करेंगे। और इनकम टैक्स तो इस पर रूल होगा, जैसे हम लोग चलो यहाँ सिंपली कर देते हैं, इसका 1% ऐसे कर देते हैं इनकम टैक्स हमारा, ठीक है। ये तो मैं ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब लोन जो है वो भी हमें यहाँ पे क्या करवाना है, लुकअप करवाना है। लोन कहाँ से हम लुकअप करवाएंगे, जो शुरू में हमने यहाँ पे काम किया था ना लोन पे, उस वहाँ से लुकअप करवाएंगे, ठीक है। तो हमारी ID के बेस पे हम लुकअप करवाएंगे। ID हमारी क्या है, वही शुरू में हमारी यही वाली ID होगी, एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID बहुत काम की है, इसको ध्यान से आपने यूज़ करना है कि डुप्लीकेट कहीं ना हो, वरना किसी और का डेटा किसी और में चला जाएगा, ठीक है। हमने ये कहा कि सैलरी शीट का हमारी जो एम्प्लॉय ID है इसको सर्च करवाओ किस में, लोन की शीट में जाके सर्च करवाओ, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 हमने लिखा है सैलरी में से जो डिडक्शन होगी, तो आपने यहाँ पे 5 लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने 0 लिख देना। अब ये देखें इसमें भी वही मसला आ रहा है, NA आ रहा है, तो इसको जो है ना आप नॉट अवेलेबल जो आ रहा है इसको आप एफ एरर का यहाँ फंक्शन लगाएंगे, उसकी बेस पे आप इसको 0 करवा दें अगर कहीं पे किसी की वैल्यू नहीं है। तो आप ये देखें कितना हो गया, हमारी सैलरी जो लोन डिडक्शन है वो हमारी 18,000 है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो लोन डिडक्शन हमारी क्या है, 19,000 है। तो 1,000 का फ़र्क आ रहा है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये देखें ना यहाँ पे ID डुप्लीकेट हो रही है, इस वजह से जो है ना इसको उसने यहाँ पे सैलरी में जो है ना 18,000 ही लिए थे, अब इसने 19,000 रुपये लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ख्याल रहे, यहाँ के लोन में जो ना ID डुप्लीकेट ना हो। यहाँ बल्कि मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ कि अगर यहाँ पे डुप्लीकेट हो तो उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। अब जब भी ID यहाँ पे डुप्लीकेट होगी तो उसको ये हाईलाइट कर देगा, तो आपके सामने आ जाएगा कि ID डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारी जो सैलरी शीट है उस पर हम लोन तक पहुँच चुके हैं। अब एडवांस सैलरी को हम कैसे करवाएंगे, इज़ इक्वल टू हम यहाँ पे लुकअप करवाते हैं, ये भी हमें वैल्यू, बल्कि हम यहाँ पे लुकअप नहीं करवानी, हमें सम करवानी है। क्यों, उसकी वजह यह है कि एक एम्प्लॉई जो है वो एडवांस सैलरी बार बार ले सकता है, ठीक है, 1 महीने में। जैसे यहाँ पे ID इसकी ID रिपीट भी हो सकती है, तो इसका कोई मसला नहीं है। अब हम यहाँ पे ID के बेस पे इसको सम करवाएंगे, सही है। तो हम सैलरी शीट पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा इज़ इक्वल टू सम इफ रेंज हमारी क्या है, वो हमारी रेंज है एडवांस सैलरी एडवांस जो है वो हमारी रेंज है, ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने क्या आ रहा है, क्राइटेरिया। अब हमारे सामने क्राइटेरिया जो है वो क्या है, हमने रखा हुआ है हमारी एम्प्लॉई ID, ठीक है। और उसके बाद सम रेंज हमारी क्या होगी, वो इसका टोटल, ठीक है। इसको सम अप करवा देगा, अच्छा। इसमें एक छोटा सा मसला है, ये फार्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे। इसमें मसला ये है कि हमारा जो सैलरी का इसको मर्ज किया हुआ ना, मर्ज की वजह से इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो मर्ज इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा जी, सैलरी शीट हमारी इज़ इक्वल टू सम एफ, हमारी जो रेंज है वो हमारी ये पूरी रेंज आ जाएगी हमारी। और उसके बाद हमारी क्राइटेरिया जो हमारा है वो क्या है, सैलरी शीट का
ये आईडी हमारी क्राइटेरिया है, और उसके बाद जो हमारी सम रेंज है वो हमारी इसका जहाँ इस आईडी की बेस पे होगा उसको सम कर देगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, कंट्रोल डी कर दें नीचे तक। अब सिद्दीक नाम का एक बंदा है, उसने एडवांस सैलरी ली है। जब देखते हैं एडवांस सैलरी उसने कितनी ली हुई, इसने एडवांस सैलरी जो ली हुई है वो ली 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा इसने लिए 10,000 रुपये। 10 और 1 11,000 रुपये हो गए, और ये नीचे यहाँ पे 5,000 और दिए। ठीक है, 10 और 5 15 और 1 16,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमारी सैलरी शीट में इन्होंने दिखाई है कि इसकी सैलरी इसने कितने दिए हमें 16,000 रुपये। इस तरह दूसरे बाकी वालों के टोटल हमने 26,000 की एडवांस सैलरी दी हुई है। तो यहाँ आप देखें क्या आ रहा है हमारे सामने 26,000 रुपये। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद टोटल डिडक्शन यहाँ पे हम सम करवा देते हैं कि इसको टोटल डिडक्शन हमारी यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारी नेट पेमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने सम का फंक्शन लगा दिया कि नेट पेमेंट को भी सम कर दो, और इस तरह यहाँ पे हमने सम लगा दिया। ये सब जगह हमने सम लगवा दिए। ग्रॉस सैलरी हमारी क्या है 6,35,000 रुपये, बाकी डिडक्शन निकाल के सब कुछ तो 5,57,000 रुपये हमने नवंबर की सैलरी जैसे पेमेंट करनी है। ठीक है, हो गया। तो इस तरह हमारी सैलरी शीट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं पे स्लिप की तरफ। पे स्लिप का मैंने ये सिंपल सा जो डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम जो वर्किंग करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डैशबोर्ड से इस कंपनी का नाम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, पे स्लिप आ गया। बाकी जो इसमें फॉर्मेटिंग है ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मेट फिलहाल मैंने लगाया ही नहीं है। सही है। अच्छा, ये हमारी जीपीएफ आ गया, आईटी आ गया, लोन आ गया और एडवांस सर्विस आ गई। अब इसको हमने क्या किया है, ठीक है, एज इक्वल टू आप करेंगे। ठीक है, हमारी जो डिडक्शन है वो सबसे पहले यहाँ पे जीपीएफ है, तो इसको आपने F4 दबा के फ्रीज़ कर दें। जी, दूसरी आईटी है, लोन है, एडवांस सर्विस है, तो इसी के बेस पे हम यहाँ पे कुछ भी फ़िलहाल नहीं करने वाले। हम यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय की। ठीक है, तो आईडी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मशहूर ज़माना वही जो है ना डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। इतना यूज़ किया डेटा वैलिडेशन को ना। ठीक है, अच्छा, डेटा वैलिडेशन हम कहाँ से लगाएंगे, एम्प्लॉय आईडी का एम्प्लॉय रिकॉर्ड से। बल्कि इसको हम जो है कहाँ से लगा देते हैं, सैलरी शीट से लगा देते हैं। ठीक है, सैलरी शीट से नहीं लग रहा। अच्छा, इसमें मर्ज किया हुआ हमने, चलो सैलरी शीट से नहीं लगाते, हम इसको एम्प्लॉय रिकॉर्ड से ही लगा देते हैं, क्योंकि जो सैलरी शीट में आईडी आएगी वो डेफिनेटली एम्प्लॉय रिकॉर्ड से ही आएगी। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, इसमें मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, और इसकी बेस पे हमने नाम लुकअप करवाना है, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू हमारी आईडी है, और दूसरा हमारा टेबल अरे क्या है, ये चीज़ें हमें कहाँ से चाहिए, ये चीज़ें हमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड से चाहिए। ठीक हो गया, और हमारी क्या है डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय नेम है वो 2 पे है। ठीक हो गया, और इस तरह डेजिग्नेशन हमारी जो है वो क्या है, इसको कंट्रोल वी करें। ठीक है, और यहाँ पे हमारी डेजिग्नेशन वो जो है वो 3 पे है। यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो अपडेट हो रहा है, देखें आपके सामने 3 2 1 जो भी देखेंगे हम उसकी बेस पे। अब बेसिक सैलरी जो है ना वो भी हमने एम्प्लॉय डेटा से ही लुकअप करवाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी कितने पे है, 4 पे है। देख लें हमारी एम्प्लॉय डेटा में जाके बेसिक 1, ये हमारा 1 2 3 4 पे हमारी क्या है वो बेसिक सैलरी है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से हमें चाहिए होगी। अच्छा जी, जो बेसिक सैलरी यहाँ पे हम जो लाना चाह रहे हैं, वर्क डेज जो हम लाना चाह रहे हैं वो हम लाना चाह रहे हैं कहाँ से, सैलरी शीट से। इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, और उसके बाद हमारा टेबल अरे जो है वो हमने सैलरी शीट से उठाना है। ठीक है, सैलरी शीट से शुरू से आप इसको सेलेक्ट कर लें, पूरा टेबल यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। F4 दबा के फ्रीज़ कर दें।
और हमारी जो अटेंडेंस आ रही है वो कितने पे आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 पे हमारी अटेंडेंस आ रही है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 2 लिखा, तो सेकंड एम्प्लॉय का इसने डेटा उठाया और इसके ये वर्क डेज इसकी जो है ना वो 29 आ रहे। 3 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, ठीक है, 7 लिखा, तो इस हिसाब से इसकी अटेंडेंस उठा रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमें यहाँ पे अलाउंसेस चाहिए। अब अलाउंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को आप कंट्रोल C करें और यहाँ पे लाके कंट्रोल V करें और इसमें हमें अलाउंसेस का सिर्फ कॉलम नंबर डालना पड़ेगा। इसमें क्या अलाउंसेस हमारे कितने नंबर पे हैं, 1 2 3 4 5 6 पे अलाउंसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 पे अलाउंसेस हैं, तो यहाँ पे हमने इसको 6 कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें 20,000 आ गया, ठीक है। मैंने 1 लिखा तो इसके 14,000 अलाउंसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे सामने, सही नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, तो इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे इसी फार्मूला को हम जो है ना कॉपी करते हैं, कंट्रोल C की वजह से और कंट्रोल V की। हमने यहाँ पे 6 पे हमारी अलाउंसेस थे और हमारे 7 पे ग्रॉस सैलरी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको सम करवा दें आप सिंपली। हमारी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 73,000, ठीक है। और यहाँ सैलरी कितनी आ रही है, सैलरी को हम यहाँ पे थोड़ी वो नहीं करवाएंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, इस फार्मूला को हमने कॉपी किया कंट्रोल C की मदद से और यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया और यहाँ पे हमने 7 किया, तो इज़ इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस अलाउंसेस। तो हमारे सामने जो सैलरी उसकी आ गई एम्प्लॉय की वो 45,000 है और 14,000 अलाउंसेस है, टोटल मिला के 59,000 बन रहे। 2 लिखते हैं हम यहाँ पे। अब देखें अलाउंसेस इसके कितने हो गए, सैलरी ये बनी है और ग्रॉस सैलरी इसकी ये बनी, ठीक है। और इस तरह से जो है आपकी डिडक्शंस आ जाएंगी, यहाँ पे डिडक्शन की डिटेल हो जाएगी, ठीक है। डिडक्शन में हम देखते हैं कि GPF हमारा कितने पे है, ये हमारा 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये इस तरह से हैं। 7 पे हमारा क्या था, ग्रॉस सैलरी थी और यहाँ पे हमारा हम लिख देते हैं 8 हो गया। 8 पे हमारा क्या है, वो है GPF 9 10 और 11। इसको हमने कर देना 9, इसको हमने कर देना 10 और इसको हमने कर देना 11, ठीक है। टोटल डिडक्शन के लिए हम यहाँ से सम करवा दें, ठीक हो गया। और यहाँ पे नेट पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। अब इसको आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, यानी कि हमारी जो दिस माइनस सैलरी शीट का हमारा जो आईडी है उसकी फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी नेट कितनी बनी वो, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया, मीन्स के कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि 35,300 जो हमारी है फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सैलरी शीट में जाके हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी डिडक्शन तमाम डिटेल, नेट सैलरी उसकी जो बनी है वो 35,300 बनी है, यहाँ पे 35,300 आ रही है, ठीक है। अब दूसरे एम्प्लॉय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कुछ भी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपने। इसी को कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया नीचे, ठीक है। कंट्रोल V करने के बाद अब ये देखें यहाँ जहाँ चीज़ें चेंज नहीं हुई ना, तो इसको आप F4 दबा दें, फिक्स कर दें इसको, ताकि इसको जब भी कॉपी करें तो ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाए। यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 कर देना। 2 कर दिया आपने तो सेकंड एम्प्लॉय का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी को आपने क्या करना है, कंट्रोल C करना है, जितने एम्प्लॉइज़ हैं उतनी आपने यहाँ पे पे स्लिप बना देनी है वन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी नंबर 3 कर दिया, ठीक है। इस तरह जितनी भी एम्प्लॉइज़ आपके होंगे उतनी आपने इसको बना देंगे। आप देखें इसमें जब प्रिंट करते हैं हम तो हमारे सामने इस तरह से आ रहे हैं, खींच देते नीचे तक, यहाँ तक सही हो गया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं हम, तो ये देखें एक पेज पे हमारे सामने तीन पे स्लिप बनती है आ रही। तो इस तरह से आप इसको पे स्लिप बनाएंगे और इसका प्रिंट निकाल देंगे और एम्प्लॉय से हम साइन ले लेंगे, ठीक हो गया आपका ये यहाँ तक भी। और उसके बाद जो है पे स्लिप हमारी हो गई और एम्प्लॉय आईडी कार्ड। अच्छा जी, एम्प्लॉय आईडी कार्ड जो है ना आपने कैसे बनाना है, यहाँ पे
एम्प्लॉय आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको ये जो फर्स्ट वाला है ये तो हमने सिंपली फॉर्मेट आपने ख़ुद बना लेना है, इतना टाइम तो अब नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको उठा लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने इस लुकअप का फंक्शन लगाना है, डेटा वैलिडेशन लगानी है। कहाँ से हम लगाएंगे? ये लिस्ट से हम लगाएंगे। और लिस्ट कहाँ से आएगी? लिस्ट का सोर्स हमारा क्या होगा? ये हमारा सोर्स होगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड। सही है। अब यहाँ से आप एम्प्लॉय का आईडी आप सेलेक्ट कर सकेंगे, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसके अलावा टाइप भी कर सकते हैं आप। सही है। और यहाँ पे इस आईडी की बेस पे हम इंफॉर्मेशन उसकी लुकअप करवाएंगे। वी लुकअप वैल्यू हमारी ये है। और जो है हमें डेटा कहाँ से चाहिए? एम्प्लॉय डेटा से चाहिए। सही हो गया, यहाँ से हमें चाहिए। और नेम कितने पे है? 2 पे है और 0। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसी को आपने F2 करके कंट्रोल C कर लीजिएगा। यहाँ मैंने कंट्रोल V कर देना, F2 दबा के कंट्रोल V करें और यहाँ पे आपने 3 लिख दिया, अकाउंटेंट आ गया। और यहाँ पे इसी को F2 दबा के 3 यहाँ पे 4 करेंगे आप, तो ये बेसिक सैलरी आ रही है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हम जैसे यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि वो एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर आ जाए। ठीक है, एम्प्लॉय का हमारे सामने फ़ोन नंबर आ जाए। फ़ोन नंबर कितने पे है? 1 2 3 4 5 पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 5, तो यहाँ फ़ोन नंबर इसका आ जाएगा। और यहाँ पे हमें पिक्चर चाहिए एम्प्लॉय की, तो पिक्चर का ये जो है हम दूसरे एक और हमारे ट्यूटोरियल उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ इसी को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा एम्प्लॉय डेटा है, यहाँ पे आपने जाना है, पिक्चर पे क्लिक नहीं करना बल्कि इसके पीछे वाले सेल पे क्लिक करना है। ठीक है, जिसमें पिक्चर रखी हुई है, ऐसे कंट्रोल C करना है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट आपने लिंक करना है, लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, लिंक आपने पेस्ट कर दिया। सही है, ये हमारे सामने लिंक हो गया। लेकिन अब ये है कि पिक्चर हमने लुकअप करवानी है। अब जैसे हमने आईडी यहाँ पे 2 की, तो ये देखें बाकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है लेकिन पिक्चर अपडेट नहीं हो रही। अब हमने पिक्चर भी अपडेट करवानी है, उसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, इज इक्वल टू इंडेक्स का हम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले क्या सर्च करवाएंगे? पूरा जो है हमारा एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है इसको हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे मैच करवाएंगे। मैच हम किससे करवाएंगे? मैच हम यहाँ पे ये आईडी उठाएंगे यहाँ से और इसको हम लुकअप करवाएंगे किसमें? हम इसको मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैं पहले ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लुकअप करवाएंगे यहाँ से इसको। ठीक है, और एग्जैक्ट मैच करना हमें, तो उसके लिए हमें 0 यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज करें। ठीक है, और उसके बाद हमारा पिक्चर हमारी कितने पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिक्चर हमारी 10 पे है। ठीक है, तो अब इसको आपने यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब इसको कंट्रोल X की मदद से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे फार्मूला में जाके यहाँ पे न्यू मैनेजर बनाना है हमें। न्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने कहा पिक लुक के नाम से मैंने यहाँ पे एक मैनेजर बनाना है और यहाँ कंट्रोल V कर दिया आपने। ठीक है, इसको क्लोज़ करें। अब आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ऊपर सोर्स आ रहा है ना ये फार्मूला बार में एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इसको यहाँ पे पिक लुक कर देना है। पिक लुक अभी जो हमने बनाया मैनेजर ये वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप जब आईडी लिखेंगे 1 है ना, मैंने 2 लिखा तो ये देखें 3 लिखा, 4 लिखा, तो इसकी बेस पे अब हमारी तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी आईडी में अपडेट हो रही होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हमने इस ट्यूटोरियल में आज सीखी और ये हमारा डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड में हमारे सामने क्या आ रहा है? ये जैसे करंट एम्प्लॉइज़ की तादाद आ रही है।
तो करंट एम्प्लॉय के साथ हमने कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा इज़ इक्वल टू काउंट एफ, कहाँ से काउंट करवाओ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड में, यहाँ से इस वाले कॉलम से, ठीक है। और क्राइटेरिया हमने दे दिया एक्टिव, इज इक्वल टू काउंट एफ, रेंज हमने दे दी एम्प्लॉय इसकी, और क्राइटेरिया हमने दे दिया क्या, एक्टिव का, जितने हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉयज़ उनकी तादाद बता दो। और सैलरी लोन हमारे सामने जो आ रहा है वो सिंपली आपने सैलरी लोन का इज़ इक्वल टू किया यहाँ पे, और यहाँ जो हमारा नेट ये लोन हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ग्रॉस सैलरी फॉर नवंबर, यहाँ कॉन्कैटिनेट हमने अप्लाई किया हुआ सिंपली, और यहाँ ये हमने इसको कहाँ से, सैलरी शीट से कि ग्रॉस सैलरी हमने यहाँ से उठाई हुई, इस तरह हमने सैलरी शीट की नेट सैलरी उठाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पास नाउ का फंक्शन लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे सामने डेट वगैरह तमाम चीज़ें हमारे सामने आ रही, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने इस ट्यूटोरियल में आज सीखी, आपके सामने आप देखें कंप्लीट हमने एक जो है HR मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अच्छा, इसमें अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है किसी तरह की भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें बहुत सारा काम पहले से अपनी वर्किंग करके रखी हुई, तो इस वजह से हमने इसको सम अप कर लिया, ठीक है। मेन जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे, जो चीज़ें थी इसमें अंदर, वो मैंने सारी वैसे कोशिश की है कि आपके साथ डिस्कस करूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई आपकी सजेशन है, कोई चीज़ इसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं आप, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर कमेंट में मुझे आगाह करें, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर ट्यूटोरियल हमारा आपको पसंद आया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी किया करें दोस्तों के साथ, क्योंकि इल्म जो है वो बढ़ाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।